Okay, so this is reading number 20 and we are doing passage number 3. Yes. Okay, passage is on semantics. One of the students asked me to discuss this reading in the class, and that is why I have come up with this reading. You can see that first we straight away go to the questions and see what sort of questions are there. Okay. So सबसे पहले है MCQs, second number पे है true false not given and third number पे है correct endings. Okay. So question types are quite similar, right? As we have been doing earlier. ठीक है. अब first question पढ़ो. Abdul, read out the question. Okay, ma'am. Question number 27. What Yes. point is made in the first paragraph? A. The aim of education is to teach people to read. B. Everybody has a different pattern of reactions. C. Print only carries meaning to those who have received appropriate ways to respond. D. The writers should make sure their work satisfy a variety of readers. ओके तो पहला ए की हिंदी है कि हाँ. एम एजुकेशन का है कि लोगों को टीच करना है कि पढ़ें कैसे, रीड कैसे करें. दूसरा बी है कि हर एक का डिफरेंट पैटर्न होता है रिएक्शन का. सी है कि प्रिंट का मतलब सिर्फ उनको ही है जिन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करने के तरीके सीखे हैं. राइटर्स को मेक श्योर करना चाहिए कि उनका जो वर्क है जो वो लिखते हैं वैरायटी ऑफ रीडर्स को satisfy करे. 4 ऑप्शंस हैं और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर है. सो वी विल गो टू द पैराग्राफ 1. ओके, this is the first paragraph. Only this paragraph contains the answer to this question. Okay. Harman, just see. इसको पढ़ो. The end product of education use and design and everybody is that Harman. Yes, ma'am. The पढ़ो. end product, the हाँ. end product of education, yours and mine and everybody's, is the total pattern of reaction and possible reaction we have inside ourselves. हाँ. If you did not have within you at this moment the pattern of reactions that we call the ability to read, you would see here only meaningless black marks on the paper. Because of the trained patterns of response, you are or are not stirred at patriotism by material music. Your feelings of reverence are aroused by symbol of your religion. You listen more respectfully to the health advice of someone who has MD after his name than to that person who hasn't. What I call here a pattern of reaction then is the sum of total of the ways we act in response to events, to words or to symbols. हाँ, तो ये लास्ट में कह रहा है कि जो पैटर्न ऑफ रिएक्शन है वो है कि हम कैसे उस इवेंट्स को या किसी लिखे हुए वर्ड्स को या सिंबल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है. तो आपको इस यहाँ पे आंसर है, वहां पे था ABC एम ऑफ एजुकेशन इज टू टीच पीपल टू रीड. आपको पता चल रहा है कहीं एम ऑफ एजुकेशन की बात नहीं हुई है? नहीं हुई है. Everybody has a different pattern of reactions. रिएक्शंस की बात हुई है पर ये नहीं है पूरे एम इस पैराग्राफ का पॉइंट कि सबके डिफरेंट पैटर्न्स हैं. ओके. And third is print only carries meaning to those who have received appropriate ways to respond. आपको पता चल गया कि ये जिन्होंने appropriate ways to respond सीखे उन्हीं के लिए meaning है print का. और writers should make sure their work satisfy variety. इसका D भी नहीं है. अब C आंसर है. ये आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है कि C आंसर है. Sum total of ways in which act in response to events, words and to symbols. इसकी वजह से कि वो उसकी वजह से है. So we have to learn how to respond to. और बेटे आपने ना ये मार्शल की प्रोनाउंसिएशन गलत करी थी. आपने मार्शल आर्ट सुना हुआ है? वो मार्शल आर्ट से मार्शल आर्ट. ठीक है. ओके मैम. हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने आप को म्यूट रख लो. जिन्होंने बोलना है सिर्फ वो अनम्यूट करें क्योंकि काफी डिस्टरबेंस हो जाती है बीच में. ठीक है. हाँ जी बेटे बोलो. अब मैम मार्शल म्यूजिक भी हो सकता है क्या?
मार्शल म्यूजिक, अब इन्होंने म्यूजिक के साथ जोड़ा है, तो मार्शल आर्ट्स का क्या मतलब है? आर्ट मींस म्यूजिक इंक्लूड हो गया इसलिए ना। नहीं नहीं, मार्शल आर्ट्स में म्यूजिक वैसे इंक्लूड हो गया, पर वैसे मार्शल का क्या मतलब है? कराटे, हाँ? लाइक कराटे वो सब सेल्फ डिफेंस। तो मार्शल का मतलब है कनेक्टेड विद फाइटिंग और वॉर। यस। ओके, इट इज मैम लाइक सेल्फ डिफेंस। और मार्शल आर्ट है एनी ऑफ द फाइटिंग स्पोर्ट्स दैट इंक्लूड जूडो एंड कराटे। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे इन्होंने म्यूजिक में क्यों लिखा है, पैट्रियटिज्म की बात करी है। पैट्रियटिज्म इज देशभक्ति। ठीक है। अब देशभक्ति में मार्शल, उसके हिसाब के जो म्यूजिक है उसको फिर मार्शल म्यूजिक है। ठीक है। जैसे ऐसे गाने जो आपको देशभक्ति के सॉन्ग पैट्रियटिज्म अराउज करते हैं। ठीक है। ये ना किसी के पीछे बहुत डिस्टरबेंस है मेरे को, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अब अपने आप को ना म्यूट कर लिया करो इमीडिएटली बात करने के बाद। ठीक है। ओके, नाउ वी गो टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया है कि क्यों है ये आंसर, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट? देखो, मैं आपको पूरा पैरा भी करा के बता देती हूँ। एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन, योर्स एंड माइंड, इज द टोटल पैटर्न ऑफ रिएक्शंस एंड पॉसिबल रिएक्शंस जो हमारे अंदर है। एजुकेशन का एंड पॉइंट है कि हमारे अंदर क्या रिएक्शंस है। ठीक है। अगर इफ यू डिड नॉट हैव विद इन यू एट दिस मोमेंट द पैटर्न ऑफ रिएक्शंस दैट वी कॉल द एबिलिटी टू रीड, अगर हमारे अंदर पैटर्न ऑफ रिएक्शंस नहीं है, जैसे एबिलिटी टू रीड नहीं है, तो हमें जो काला अक्षर भैंस बराबर दिखेगा ना कागज पे। यस मैम। व्हाट वी सी हियर ओनली मीनिंगलेस ब्लैक मार्क्स ऑन पेपर। ठीक है। अगर हम पढ़ना आता तभी हम उसका कोई मीनिंग लगा पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं आता तो हमारे लिए क्या है, जस्ट ब्लैक मार्क्स ऑन पेपर। ये समझ आ गया? बिकॉज ऑफ द ट्रेन्ड पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली है रिस्पॉन्स के पैटर्न्स की। यू आर स्टर्ड टू पैट्रियटिज्म बाय मार्शल म्यूजिक, क्योंकि हमें उस गाने का मतलब समझ आ रहा है, तो हमारे अंदर वो भावनाएं जाग रही हैं। समझ गए? अगर नहीं समझ आएगा तो भावनाएं नहीं जागेंगी ना, रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना हमारे अंदर। समझ आ गई बात को? सो इट इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सेज। ओके, दैट इज व्हाई इट इज सी। ठीक है। सी कह रहा है प्रिंट ओनली कैरीज मीनिंग टू दोज हु हैव रिसीव्ड एप्रोप्रिएट वेज टू रिस्पॉन्ड। अगर हमें प्रिंट का मीनिंग उनके लिए है जिनको रिस्पॉन्ड करने के, अगर हम प्रिंट का मतलब है कि अगर हमने रीडिंग सीखी है तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे ना, उस हिसाब से कुछ पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी, तो हम रिस्पॉन्स करेंगे उस हिसाब से। समझ आ गया सी क्यों है? Okay, now we go to question number 2. According to the second paragraph, people are judged by, second paragraph के हिसाब से people कैसे judge होते हैं? The level of education, उनकी education कितनी है? The variety of experience, उनके पास experience किस तरह का है? How conventional their responses are, उनकी जो responses हैं वो कितनी conventional है, means कितनी वैसी है जैसी आम होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, हम उनको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जज करते हैं। तो ये है 4 तरीके जिनसे पीपल को हम जज करते हैं: लेवल ऑफ एजुकेशन, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, कन्वेंशनल देयर रिस्पॉन्सेज आर, एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। नाउ वी गो टू पैराग्राफ 2. Paragraph 2. Okay. Okay. Anybody, Inderjeet, will you like to read? Okay, ma'am. Our reaction patterns or our semantic habits are the internal and the most important residue of whatever years of education or miseducation we may have received from our parents' conduct towards us in the childhood, as well as their teaching. From the formal education we may have heard, we may have had, from the lectures we have listened to, from the radio program and the movies and the television show we have experienced, from all the books and the newspapers and the comic strip we have read, from the conversation we have had with our friends and associates, and from our experiences. If as the result of all these influences that make us what we are, our semantic habits are reasonably similar to those of most people around us. We are regarded as normal or perhaps dull. If our semantic habits are noticeably different from those of others, we दिवांगनी are को समझ आ गया आंसर? दिवांगनी, Variety of experience. It is conventional responses. कन्वेंशन है आंसर, Similar कन्वेंशन में दिखा है।
reasonably similar responses to those most around us. हाँ देखो, रीजनेबली सिमिलर रिस्पॉन्सेज, सिमिलर मींस जो आम रिस्पॉन्स है, कन्वेंशनल रिस्पॉन्स है। देखो कन्वेंशनल का मतलब आपको आना चाहिए। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? जो हम साधारण यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल। कन्वेंशनल मेडिसिन कौन सी होती है? जो हम सबसे ज्यादा आम यूज करते हैं, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, तो कन्वेंशनल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? जो आम रिस्पॉन्स है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल देते हैं, उसको कन्वेंशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। मैम इसमें ये नहीं आ सकता कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें जैसे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑल आर एक्सपीरियंसेस, हाँ इसके ऊपर हाँ, मैम इसमें देखो वेराइटी मेरी ऑफ बात एक्सपीरियंस सुनो, भी मेरी दिया बात है। सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो फ्रॉम ऑल ओवर एक्सपीरियंसेस है ना, ये पता है क्यों लिखा हुआ है? आप इसका मतलब हरप्रीत, आपके पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस है, अपने आप म्यूट करो। फ्रॉम ऑल ओवर एक्सपीरियंसेस का मतलब है, देखो इसको पूरा अगर देखो आप, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका ये लास्ट है इस सेंटेंस का। ये सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? ये सेंटेंस ही बहुत लंबा है। Our reaction patterns are the internal and most important residue of whatever years of education or miseducation we may have received from our parents conduct towards us in childhood as well as their teachings. तो हमारा जो सिमेंटिक हैबिट्स, रिएक्शन पैटर्न्स है ना, वो रेजिड्यू है जो हमें हमने पेरेंट्स से सीखा है। फॉर्मल एजुकेशन से लेके लेक्चर्स जो हमने सुने, उससे हमारा वो पैटर्न, रिएक्शन पैटर्न है फ्रॉम and shows we have experienced from all the books. तो उसके है। और क्वेश्चन क्या कहता है? according to the second paragraph, people are judged by, लोग कैसे जज होते हैं? if as a result of all these influences that make us what we are, अगर ये influences का result है जो हमें बनाता है, our semantic habits are reasonably similar to those of most people, we are regarded as, जहां यहाँ पे है कि लोग हमें कैसे समझते हैं। समझ गए? क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड पैराग्राफ, पीपल आर जज्ड बाय, पीपल जज बाय कैसे होते हैं? यहाँ पे है ना, पीपल आर जज्ड बाय। यस मैम। वो तो ऊपर खत्म हो गई बात। पीपल कैसे जज होते हैं? अगर उनकी रिस्पॉन्सेज कन्वेंशनल है उससे। ओके, हाउ कन्वेंशनल देयर रिस्पॉन्सेज आर। क्योंकि उसमें मैम ये भी लिखा हुआ है फ्रॉम द कन्वर्सेशन वी हैव हैड विद फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स एंड फ्रॉम ऑल आवर एक्सपीरियंसेस। तो उसमें जैसे ऊपर एजुकेशन की बात करी है, तो देन ही इज टॉकिंग अबाउट द कन्वर्सेशन। हम जज हो रहे हैं, वो तो अगले में आ रहा है ना, हाउ वी आर जज्ड। उसमें तो सारी चीजों की बात हो रही है जनरल। मैम हाँ, इसमें नॉर्मल की बात भी, वो भी कन्वेंशनल ही होगा ना? हाँ नॉर्मल, वही तो मैंने तभी आपको कन्वेंशनल का मीनिंग समझाया अच्छे से। नॉर्मल जो ज्यादा यूज होता है, नॉर्मल, हाउ वी आर जज्ड, नॉर्मल है। अगर हमारी रिस्पॉन्सेज सिमिलर है टू दोज ऑफ मोस्ट पीपल, तो हमें लोग कैसे जज करते हैं? कहते हैं ये नॉर्मल है भाई, ये वैसे ही कर रहा है जैसे सब कर रहे हैं। आप देखो, जब हम अभी तो फैशन ऐसा हो गया है कि फैशन अलग नहीं है। जब मैं छोटी थी ना, अगर बहुत खुली सलवारें चलती थी और अगर किसी ने टाइट पहनी है ना, तो बड़ा अजीब लगता था, अब नॉर्मल। अभी तो आपको 4 जने जा रहे हैं, एक ने खुली पहनी है, एक ने टाइट पहनी है, एक ने पिजामी पहनी है, एक ने मिनी स्कर्ट पहनी है, सब नॉर्मल लग रहा है। अभी चेंज हो गया टाइम। मैं 50 साल पुरानी बात कर रही हूँ। हमारे टाइम पे अगर खुली सलवार का फैशन आ गया, टाइट पहन के जाओगे ना, तो सब आपको घूरेंगे, ये कहाँ से आ गया नमूना। तो ऐसे होता था उस टाइम में। तो कन्वेंशनल क्या होता है? जो सब कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इट। तो हम कैसे जज होते हैं? नॉर्मल जज होते हैं अगर हम वैसा कर रहे हैं जैसे सब कर रहे हैं। कन्वेंशनल हमारा है रिस्पॉन्स। समझ गए? यस मैम। Okay, now we go to the third question, and the third question is, what point is made in the third paragraph? थर्ड पैराग्राफ में कौन सा पॉइंट मेड है? सबसे पहला ए इन्होंने दिया, स्टैंडर्ड वेज आर इनकेपेबल ऑफ डिफाइनिंग वर्ड्स प्रिसाइजली। सबसे पहली चीज है कि जो स्टैंडर्ड वेज हैं, जो आम साधारण वेज हैं, जो आम हम यूज करते हैं, उनसे किसी वर्ड की डेफिनेशन प्रिसाइजली डिफाइन करनी बड़ी मुश्किल है। बी, अ डिक्शनरी इज मोस्ट साइंटिफिक, डिक्शनरी सबसे साइंटिफिक है इन डिफाइनिंग वर्ड्स। A dictionary should define words in as few words as possible. डिक्शनरी को सबसे कम वर्ड्स में डिफाइन करना चाहिए। मैथमेटिशियंस could define words accurately. मैथमेटिशियंस डिफाइन कर सकते हैं वर्ड्स को एक्यूरेटली। ओके, थर्ड पैरा में जाते हैं। दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। सिमेंटिक्स, चलो सिमेंटिक्स तबस्सुम आप पढ़ दो।
Semantics is sometimes defined in dictionaries as the science of the meaning of words, which would not be a bad definition if people didn't assume that the search for the meanings of words begins and ends with looking them up in a dictionary. If one stops to think for a moment, it is clear that to define a word, as the dictionary does, is simply to explain the word with more words. To be thorough about defining, we should next have to define the words used in the definition, then define the words used in defining the words used in the definition, and so on. Defining words with इसका यहाँ तक ये मतलब है कि जो डिक्शनरी है ना, वो हमें एक वर्ड का मीनिंग बताती है बहुत सारे और वर्ड्स देके. ऐसे ही होता है ना डिक्शनरी में. एक मुश्किल वर्ड आप ढूंढते हो, उसका एक लंबे से उस सेंटेंस में मीनिंग समझाया होता है, तो आपको समझ आ जाता है क्योंकि वो वर्ड्स का मीनिंग आपको आता है. पर ऐसे क्या होता है कि कई बार उन वर्ड्स में से आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता, फिर आप उनका मीनिंग ढूंढते हो, फिर उनका मीनिंग ढूंढते हो. तो इस शॉर्ट मतलब ये मतलब डेफिनेशन डिक्शनरी में जो है ना, वो प्रिसाइज डेफिनेशन किसी भी वर्ड की हमें डिक्शनरी में नहीं मिलती है कई बार. ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है. आगे चलो. Defining words with more words, in short, gets us at once into what mathematicians call an infinite regress. Alternatively, it can get us into the kind of run around we sometimes encounter when we look up impertinence and find it defined as impudence. So we look up impudence and find it defined as impertinence. Yet, हाँ ठीक, समझ गए ना. हमें एक वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं और दूसरा वर्ड दिया, उसका भी नहीं आता, उसका ढूंढते हैं, पहले वाला दिया, तो क्या क्या निकालेंगे मतलब. ठीक है. हाँ. Yet, and here we come to another common reaction pattern. People often act as if words can be explained fully with more words. To a person who asked for a definition of jazz, Louis Armstrong is said to have replied, "Man, when you got to ask what it is, you'll never get to know," proving himself to be an intuitive semanticist as well as a great trumpet player. तो ये इंट्यूटिव सिमेंटिसिस्ट उसने अपने आप को प्रूव करा और ग्रेट ट्रम्पेट प्लेयर अपने आप को प्रूव करा. ठीक है, इंट्यूटिव का मीनिंग देखते हैं. क्यूरियस मैम, पता नहीं. Obtained by using your feelings rather than by considering the facts. मतलब इंट्यूशन से कोई मीनिंग बताता है, पर वो म्यूजिशियन कैसा है, वो प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा है, ग्रेट ट्रम्पेट प्लेयर है. पर सिमेंटिसिस मतलब मीनिंग कैसे ढूंढता है, जस्ट बाय यूजिंग हिज फीलिंग्स. अच्छा, ये हो सकता है, यही होगा. ओके, लाइक दैट. यू गेट माय पॉइंट. ये इंट्यूटिव का मीनिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो फीलिंग से ढूंढते हैं rather by considering that. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 4 ऑप्शंस में से लगा कोई? जो 4 ऑप्शंस थी कि स्टैंडर्ड वेज आर इनकेपेबल ऑफ डिफाइनिंग वर्ड्स प्रिसाइजली. मैम ए लगा. ए ही आंसर. इनकेपेबल. हाँ, जहाँ इनकेपेबल लिखा है. हाँ, लिखा हुआ है ना. तो डिक्शनरी से हमें कैपेबल, हमें मीनिंग प्रिसाइजली मिलता ही नहीं है वर्ड्स का कई बार डिक्शनरी से. तो स्टैंडर्ड वे क्या है, डिक्शनरी. तो स्टैंडर्ड वेज आर इनकेपेबल ऑफ डिफाइनिंग द वर्ड. ठीक है. अच्छा, अब ना अगला क्वेश्चन भी इसी पैरे में है. अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि मैं पूरा पैरा इसलिए पढ़वा दिया था, मुझे पता था. What does the writer suggest by referring to Louis Armstrong? ये लुई है, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके. हाँ मैम, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग. सोनल, कुछ कहना है आपने? ओके, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग. What does the writer suggest by referring to Louis Armstrong? सबसे पहला, he is an expert of language. तो लुई आर्मस्ट्रॉन्ग का एग्जांपल आपको लगा कहीं से कि वो एक्सपर्ट ऑफ लैंग्वेज करके उसने उसका नाम रेफर करा है? नहीं. म्यूजिक एंड लैंग्वेज, म्यूजिक एंड लैंग्वेज एक जैसे है, इसलिए उसने उसका नाम रेफर करा है कि म्यूजिक भी वही है. नहीं मैम. He provides वर्ड्स का डिफाइन कर रहा है ना वो मैम. he provides insights to how words are defined. एक ये ऑप्शन, playing trumpet is easier than defining words. कहीं पे नो इजियर नहीं, उसने No, बताया ma'am. है. नहीं. सी है मैम. हाँ, इसका आंसर सी है, पर अगर आपको सी नहीं समझ आया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ए, बी और डी. समझ गए? इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. यू गेट माय पॉइंट. Sometimes it is the elimination method in MCQs. Okay, which most students have to use. Elimination method. Okay. Now next question is,
what does the writer intend to show about the example of personal manager? तो पर्सोनल होते जो ये जो वर्कर काम करते हैं ना, वर्कफोर्स उसको कहते हैं। तो राइटर ना क्या शो करता है उसकी पर्सनल मैनेजर के एग्जांपल देके। सबसे पहला है हार्वर्ड मेन आर नॉट नेसेसरली कॉम्पिटिटिव इन द जॉब मार्केट। सबसे पहली बात वो ये कह रहा है कि हार्वर्ड के जो लोग हैं ना वो जॉब मार्केट में अच्छे नहीं है। अब हार्वर्ड तो आपको पता है दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, ठीक है। मीनिंग कैन नॉट ऑलवेज बी शेयर्ड बाय अदर्स। मीनिंग हमेशा दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरा है द आइडिया ऑफ ऑपरेशनलिज्म does not make much sense outside the physical science. Physical science के बाहर operationalism का idea sense नहीं बनाता। Job applicants should take care when filling out application forms. Job applicants को take care करना है जब वो fill out करे application forms. अब ना personal manager की बात जो है वो paragraph 5 या 6 में हुई है। यहाँ पे सीधा चलते हैं, यहाँ पे है कहीं पे personal manager। मैम ये रही, हाँ यही पे ऑपरेशनलिज्म, हाँ वही वाले पैरा में। ओके, यहाँ पे है पर्सनल मैनेजर, तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको मैं बड़ा करती हूँ। ओके, उसने ना इसका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द राइटर इंटेंड टू शो अबाउट द एग्जांपल। इसका एग्जांपल डालने से राइटर क्या शो करना चाहता है? चलो पढ़ो इस पैरे को। But let us carry this suggestion of operationalism outside the physical science, where Birmingham applied it, and observe what operations people perform as the result of both the language they use and the language other people use in communicating to them. Here is a personal manager studying an application blank. He comes to the word education, Harvard University, and drop the application blank in the waste basket, because as he would say, if you ask him, I don't like Harvard's man. This is an instance of meaning at work, but it is not a meaning that can be found in dictionaries. हाँ, तो वो उसको ना फेंक देगा डस्टबिन में, और अगर उससे पूछोगे तो वो बोलेगा मेरे को हार्वर्ड के नहीं पसंद इसलिए मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। अब यहाँ पे ना एक्चुअल ये मीनिंग नहीं है कि उसको नहीं पसंद, समझ गए? पर ये मीनिंग एट वर्क है, पर वर्क में ये मीनिंग है। उसकी कोई भी रीजन हो, उसने बाहर वो रीजन नहीं देना, पर उसने कुछ भी कह देना है अगर उससे पूछोगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना बी आएगा मैम, वो बी बनता है, मीनिंग कैन नॉट ऑलवेज बी शेयर्ड। अब देखो हार्वर्ड मैन आर नॉट नेसेसरली कॉम्पिटिटिव, यहाँ इसका कोई जिक्र नहीं है, ये ए तो बिल्कुल आउट हो गया। सी कहता है द आइडिया ऑफ ऑपरेशनलिज्म डज नॉट मेक मच सेंस आउटसाइड द फिजिकल साइंस। ऑपरेशनलिज्म का आइडिया बिल्कुल आउटसाइड इसको ये अप्लाई नहीं करता। ये ऊपर वाली लाइन से क्लियर है कि ये अप्लाई होता है, इसलिए ये बिल्कुल सी भी आउट है, ठीक है। और डी है जॉब एप्लीकेंट शुड टेक केयर व्हेन फिलिंग, यहाँ भी कोई ऐसा सजेशन नहीं दी हुई, तो डी भी आउट है। तो बेसिकली डी इज द आंसर, बट यस यू कुड हैव कंफ्यूज्ड इट विद सी। अगर आप ऊपर की लाइन से वो वर्ड्स देख के, जो कई बच्चे कीवर्ड्स देख के कर लेते हैं, हाँ मैंने भी मैम सी किया था। हाँ, तो वो कर सकते हो। ये बी और सी में है, बट बेसिकली इट इज बी, बिकॉज देखो हार्वर्ड की एप्लीकेशन वो फेंकता है डस्टबिन में, उससे कोई पूछे अगर तो वो यही बोलेगा मुझे हार्वर्ड के नहीं पसंद, पर बेसिकली यू नो दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ दैट। Why he has thrown it is something else is the reason. I'll give you another example. Meaning different होता है। अब देखो दो applications आई, my niece is working in UK, वो वहाँ काम कर रही है किसी कंपनी में, उन्होंने ना कोई रिक्रूटमेंट करनी थी, इसको आगे कर दिया कि you will see all the applications. She shortlisted 2 applications कि ये सबसे अच्छे हैं, और एक एप्लीकेशन में था कि उसने 4 साल में 8 नौकरियां बदली थी बंदे ने, उसके क्रीडेंशियल सबसे अच्छे थे, ओके, टॉप मोस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का पढ़ा हुआ था और टॉप मोस्ट कंपनीज में काम कर रहा हुआ था। दूसरे वाले ने अभी एक जॉब करी थी कहीं पे, वहीं लगा हुआ था पिछले कुछ सालों से, और अब चेंज कर रहा था। तो 2 फाइल्स ही, जो उसका बॉस था ना, उसने जिसके क्रेडेंशियल्स बेटर थे, जो बेटर कॉलेजेस से पढ़ा था, पर जिसने 8 नौकरियां बदली थी, उसका उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया और दूसरे को सिलेक्ट कर लिया। उसने फिर मेरी नीस को समझाया, शी वाज वेरी यंग, उसको भी ये बातें उसने फिर शेयर करी हमसे। कहता है जिसने 4 सालों में 8 नौकरियां बदली है ना, वो अगले 4 महीने में हमें भी टिच मारने वाला है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं रखना, समझ गए?
तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है, पर ये मीनिंग वो बता नहीं सकते हैं बाहर, उसको नहीं बता सकते, उसको तो सिर्फ यही बताएंगे ना कि द अदर पर्सन वाज बेटर, हमें वो ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। सो दिस इज मीनिंग एट वर्क इज डिफरेंट। तो ये बेसिकली दैट इज व्हाट मीनिंग हमेशा शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दैट इज इट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पहला क्वेश्चन है सम स्टेटमेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ना प्रूव की जा सकती हैं ना डिसप्रूव की जा सकती हैं। मैंने आपसे शेयर कर दी थी फाइल सुबह, कुछ बच्चे कर पाए। इसका जो 30 सेकेंड का आंसर है, दिस इज हियर, यहाँ पे है, मैं आपको लेके जाती हूँ वहां पे, आप मुझे बताना ये यस आएगा, नो आएगा कि नॉट गिवन आएगा। ये वाले पैरे में है। चलो इसको पढ़ो और मुझे बताओ। ये जो क्वेश्चन है, सम स्टेटमेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। चलो जुबेर। इसमें कहाँ से पढ़ना है? Here is a simple everyday kind of example. अच्छा, here is a simple everyday kind of example of the operation. Zubair, I have to stop you in between. I have to stop you in between. Zubair, I have to stop you in between because your voice is not coming out clear for some reason. Can I? Here is a simple everyday kind of example of operational definition. If you say this tape measures 6 feet in length, you could prove it by taking a foot rule, performing the operation of laying and counting. 1, 2, 3. आपकी भी क्लियर नहीं आ रही है। मैम मैं आई मैम बलजीत। हाँ बलजीत। Here is a simple kind of example of operational definition. If you say this table measures 6 feet in length, you could prove it by taking a foot rule, performing the operation of laying it end to end while counting 1, 2, 3, 4. But if you say and revaluations have started uprising with just this statement, man is born free, but everywhere he is in chains. What operations could you perform to demonstrate its accuracy or inaccuracy? हाँ, तो अब ये बताओ, ये कह रहा है कि अगर आप बोलोगे, अगर आप कहते हो ये टेबल 6 फुट है तो आप 6 फुट मेजर कर सकते हो, पर अगर आप बोलते हो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, अब ये थोड़ी सी इडियोमैटिक इंग्लिश है। मैन बॉर्न तो फ्री है पर हर जगह चेन्स में है, तो इसका आप कैसे एक्यूरेसी या इनएक्यूरेसी प्रूव करोगे? नहीं कर सकते हो ना। ट्रू आई थिंक ट्रू आएगा। आपको समझ आ गया? ओके। सेकंड है मीनिंग दैट इज, मैं वहां ले जाती हूँ आपको क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है मीनिंग दैट इज पर्सनल टू इंडिविजुअल्स इज लेस वर्दी टू स्टडी देन शेयर्ड मीनिंग। तो जो मीनिंग जो किसी के लिए पर्सनल है, जैसे मैं किसी वर्ड का अपने लिए मीनिंग लगा रही हूँ, वो लेस वर्दी है स्टडी करना देन शेयर्ड मीनिंग। और वो मीनिंग शेयर करो जो सारे जने सब में स्टडी करो, जो सब लोग शेयर करते हैं। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले में ही है मैडम। ओके, नॉट गिवन है। हाँ, पर ये नॉट गिवन है क्योंकि यहाँ कुछ बताया नहीं गया है ऐसा। कौन सा पैरा था हार्वर्ड वाला? वो 6 बट से शुरू होता है, बट let us carry this. इसमें आंसर इज नॉट गिवन क्योंकि इसमें कोई शेयर्ड और पर्सनल मीनिंग की बात कुछ बताया नहीं गया है। हाँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है flags and words are eliciting responses of the same reason. जो flags and words हैं वो same reason के response elicit करते हैं। अब कीवर्ड है flags, words, ठीक है। flags कौन से पैरे में है? मैम इफ बाई सीम वाले में पैरे में। हाँ, इसमें है। अब इसको पढ़ो और फिर देखो, मुझे बताओ। क्वेश्चन है flags and words are eliciting responses of the same reason. अब फ्लैग्स एंड सिंबल्स कहाँ पे आए हैं? यहाँ पे कहीं पे वहाँ देखो मैम, 4 लाइन के बाद में जो लाइन है ना, when we react to a flag, we react to a flag, when we react to a word, we are not reacting to a set of sounds. हाँ, ठीक है। ट्रू आएगा। हाँ, when we react to a flag, we are not reacting simply to a piece of cloth, but to the meaning with which it has been symbolically endowed. And when we react to a word, we are not reacting to a set of sounds, but to the meaning with which. तो ये दोनों में सेम है, तो आंसर क्या होना चाहिए?
ट्रू, वेरी गुड, ट्रू है। अच्छा, अब लास्ट यस नो नॉट गिवन पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरी कैन बी एंटरटेनिंग विदाउट बीइंग अंडरस्टूड। तो कोई भी स्टोरी जो है वो एंटरटेनिंग हो सकती है, चाहे वो समझ आए ना आए। ठीक है मैम, एलिसाइटिंग का मींस क्या होता है? एलिसिट करना मींस उसको लेके आना, बात रिमूव करना नहीं, रिमूव करना नहीं। एक मिनट, elicit का मतलब है to get information or a reaction from somebody often with difficulty। कुछ किसी से कुछ मुश्किल से, I could elicit no response from him, मैंने उससे कोई जवाब नहीं ले पाई, कुछ information नहीं ले पाई, response। ठीक है, her tears elicited great sympathy from her audience। उसके tears ने sympathy ली audience की, elicit ली, मतलब elicit की means लोगों की reaction लिया, sympathy ली उनकी। ठीक है, जो कोई चीज लोगों का reaction लेता है उसको कहते हैं elicit। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज इट। ये जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है वो इस पैरे में है। क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बोल देती हूँ। द क्वेश्चन इज ओवर हियर ओनली। अ स्टोरी कैन बी एंटरटेनिंग विदाउट बीइंग अंडरस्टूड। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है। If I were to tell a shocking obscene story in Arabic or Hindustani or Swahili, Swahili पता है कहाँ की लैंग्वेज है आपको? No, ma'am. साउथ अफ्रीका। Yes, ma'am. South अफ्रीका की नेटिव लैंग्वेज स्वाहिली है। और एक मूवी है, उसमें एक गाना है हकूना मटाटा, लायन किंग। आपने देखी लायन किंग मूवी? वो जो हकूना मटाटा है वो स्वाहिली का वर्ड है। उसका मतलब है एवरीथिंग विल बी फाइन, Hakuna Matata. And you know, I didn't know, one of my cousin bhabis was born in South Africa and she knew Swahili. And she was here in my house जब मैं ये मूवी देख रही थी, तो मुझे कहते हैं, को पता है ये हकूना मटाटा स्वाहिली का वर्ड है और इसका मतलब ये है। मैंने कहा अच्छा, I didn't know, and she told me that. So Swahili is the language of South Africa. तो ये कह रहा है कि if I were to tell a shockingly obscene story in Arabic or Hindustani or Swahili before an audience that understood only English, no one would blush or be angry. The story would be neither shocking nor obscene. Indeed, it would not even be a story. तो इसका क्या मतलब है? False है मैम। तो वो कह रहा है कि स्टोरी कैन बी एंटरटेनिंग विदाउट बीइंग अंडरस्टूड। ठीक है, अब हमें ना जो ईच सेंटेंस है उसको करेक्ट एंडिंग में लगाना है। तो इसका पता है क्या, ये ऐसे थे, ईच सेंटेंस नहीं है, वैसे तो सेंटेंस है, पर पहले ना एक एक चीज है। जैसे किसी का नाम होता है या कुछ चीज होता है, ब्रिज, जैसे अ कॉमिक स्ट्रिप है, तो मैंने पता है क्या करा, कॉमिक स्ट्रिप जहां आया उसको सर्कल कर लिया, डिक्शनरी जहां आया उसको सर्कल कर लिया, ब्रिजमैन जहां आया उसको सर्कल कर लिया। अ स्टोरी इन अ लैंग्वेज द ऑडियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड। अभी आपको ये इसका आंसर तो बिना पढ़े चला जाएगा, बताओ मुझे। अ स्टोरी इन अ लैंग्वेज द ऑडियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड इज मीनिंगलेस। जच रहा है? डी हैज लास्टिंग इफेक्ट ऑन सोशल कंटेंट। अच्छा, मेरी बात सुनो, अगर आपको स्वाहिली नहीं आती, मैं आपको स्वाहिली में स्टोरी सुनाऊं, मीनिंगलेस है, वो मीनिंगलेस होगी ना, कि लास्टिंग इफेक्ट होगा उसका? मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस होगा। कैसे होगा? ये होगा आंसर, अभी तो पढ़ा है। ठीक है, हाँ, यस मैम। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका एकदम से हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर $1 बिल कहाँ जाए है, मैंने सर्कल करा है। तो जो कॉमिक स्ट्रिप है ना वो बी पैरा में है। अब वहाँ बी पैरा में देखो और फिर आपको पता चलेगा डी लिखा हुआ है। हैं? वो बेटे आंसर गलत है बुक में। ओके मैम। हाँ, बुक में गलत है, 2 आंसर्स गलत है बुक में। लास्ट वाले 2 आंसर्स गलत है। 39 का आंसर ए है और 40 का आंसर है डी। ओके, वो गलत ही है, आप ठीक कर लेना। यस मैम। आपको समझ आ रहा था कि क्यों वो गलत आंसर है? तो आपको समझ आ रहा था वो? नहीं ना? हाँ मैम, बहुत कंफ्यूज हो गए थे हम। मैं भी हो गई थी कंफ्यूज। मैंने कहा ये क्या है? ये क्या है? मैंने कहा ये हद है, इतनी तो खराब नहीं है मेरी कि ये वाला आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों है? तो मैंने कहा ये गलत है, ये मिसप्रिंट हुआ है हमारे से ही। ओके, एनीवेज वो ठीक कर लेना आप। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब ये ना कॉमिक स्ट्रिप यहाँ पे है कहीं, यहाँ है कॉमिक, ये देखो न्यूज़पेपर के पास में। हाँ हाँ, यहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप। हाँ, तो इसका आंसर जो है ना कॉमिक स्ट्रिप, देखो यहाँ पे लिखा होगा
ये पूरा सेंटेंस पढ़ो, अब यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या आना चाहिए। ये पूरा सेंटेंस बहुत लंबा है। Our reaction patterns or our semantic habits are the internal and most important residue of whatever years of education or miseducation we may have received from our parents' conduct towards us in childhood, as well as their teachings, from the formal education we may have had, from all the lectures we have listened to, from the radio programs and the movies and television shows we have experienced, from all the books and newspapers and comic strips we have read, from the conversations we have had with friends and associates, and from our experiences. ठीक है? So ये lasting effect है. These influences are make us what we are. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए? इफेक्ट और इन्फ्लुएंस का जो सिमिलर वर्ड्स भी मिल रहा है मैम। हाँ, आपको मिल रहा है ना? So has lasting effects on human behavior. ये वाला है इसका. A comic strip has lasting effect. ठीक है? अब डिक्शनरी का भी हमने पैरा बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है. अब हम वापस जाए बिना इसको पढ़ के देखो कि आपको लगता है कि कोई आंसर हो सकता है डिक्शनरी वाले का? मैडम ई लग रहा है। ई ही है, लग रहा है नहीं, ई ही है। और ये अंदर जाए बिना आप कर लोगे 5 सेकंड में, कर लोगे ना ये आंसर? फिर अब ब्रिजमैन है, ब्रिजमैन हमने नहीं पढ़ा ढंग से, ब्रिजमैन 4th पैरा में है। ब्रिजमैन देखते हैं ब्रिजमैन क्या कहता है। ये 1st है पैरा, ये 2nd है, ये 3rd है और ये 4th है। इसमें है ब्रिजमैन। ये देखो ब्रिजमैन, ब्रिजमैन कहता है कि semantics does not deal with the meaning of words as that expression is commonly understood. P.W. Bridgman, the Nobel Prize winner and physicist, once wrote, the true meaning of a term is to be found by observing what the man does with it, not by what he says about it. अब चलो अंदर, वो ये कहता है कि वो उसके साथ क्या करता है, क्या उसके साथ करता है, ना कि उसका उसका जो है। अब यहाँ पे देखो, आपको कोई लगता है? Ma'am, G, importance of analyzing how. हाँ, emphasizes the importance of analyzing how words were used. हम उसे क्या करते हैं, मतलब उसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है? तो ये है जी, इसका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है नहीं, $1 बिल। $1 बिल हमने देखा है कहीं पे? हाँ मैम, अभी वो पैराग्राफ में यहाँ पे $1 बिल। ठीक है? वो कहता है कि $1 बिल, if the $1 bill would become a scrap of paper, $1 bill क्यों है? We do not understand the $1 bill by staring at it long and hard. We understand it by observing how people act with respect to it. ठीक है? अब मेरे को आप बताओ, आप पुराने वाला 1000 का नोट है, उसको लेके बाहर ऐसे ऐसे घुमाओगे, वो कोई उसको किस नजर से देखेगा? अच्छा, आप पुराने 1000 का नोट सड़क पे फेंक दो और ऑब्जर्व करो दूर से कि क्या। कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसको, कोई भी नहीं है ना, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। 2000 का नोट आजकल फेंक के देखो। ठीक है? सो ये है कि वो लोगों का, ठीक है? चलो ये देखो, $1 बिल is meaningless. A out हो गया, has lasting effect. इसमें सोशल की बात हुई है मैम, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट ही आएगा। D can be understood only in its social context. D है, ठीक है? D आंसर। चलो 5 मिनट्स में गेट बैक करते हैं फॉर द स्पीकिंग। लेकिन अगर मैं आज ये नहीं कराती ना पहले, तो ये स्पीकिंग वाले टाइम पे बच्चों ने कहना था मैम अब स्पीकिंग ही कराई जाओ, रहने दो रीडिंग। मैम जब आप कराते हो तो आंसर मिल रहे हैं, पर जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे मिलता नहीं है हमको। मैम सही में बिल्कुल सही बोला। करेक्ट है मैम, बिल्कुल। मैम सभी के साथ ये होता है, मुझे लगता है शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैम अगर ऐसा आ गया पैसेज तो हम लोग कैसे टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, इतना धीरे-धीरे प्रैक्टिस होगा। मैडम पैराग्राफ भी पता होता है, इसमें पैराग्राफ में आंसर है, पर फिर भी आंसर गलत लगा देते हैं हम लोग। वो इसका मतलब है आपको वहां से मीनिंग नहीं समझ आ रहा किसी वर्ड का। वर्ड्स हैं जो मीनिंग, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। I'll get back in just 5 minutes. Okay? Okay, ma'am. With the same link. Okay? Okay.